जहाँ जाएगा ये तीनों चीज़ें जाएंगी। साइकिल Well, garment industry, as people pursue it, they feel that it's a very lucrative industry, very profitable industry. But once you get into it, you would know exactly what are the consequences or what are the hardships of the industry, because it involves a lot of process, right from the raw stage of fabric. Then it has to be woven in the yarn stage, and it goes into weaving, then the processing of dyeing, getting the prints done on it, then the washing process, and once the fabric is ready, then the garmenter takes them, the cutting and adding of the extra embroideries or whatever finery that they want to get into it, and then the stitching process and the finishing process, then you have the ironing and packing, and finally then the garment is dispatched. So it involves a lot of process, so it's not easy if you get to see. लॉकडाउन कैसा था? लॉकडाउन गया ठीक ऐसा गया, लेकिन प्रॉब्लम तो हरी आई। लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कैसी प्रॉब्लम? ये सब दिक्कत हो गई, सब कुछ माल जा नहीं रहा था, कुछ आ नहीं रहा था, पेमेंट्स काफ़ी लेट आ रहे थे, कोई आ नहीं रहा था, तो सब ये दिक्कत बहुत आई। आपके कारखाने के सिवाय घर पे कैसी दुविधाएं? घर पे तो बस ठीक था, घर पे तो ठीक ठाक ऐसा चल जाता था, आजू बाजू मोहल्ला में सब ऐसा देख के कुछ भी अलग अलग चल जाता था। और कारखाने में तो आते ही नहीं थे हम लोग, कम से कम कंटिन्यू 5-6 महीने तो आए नहीं हम लोग, एकदम बंद ही रखा था। Well, the lockdown lasted. I mean, people initially thought it might be just 2 weeks, 3 weeks, and it ran into months and months and months. So, and during the lockdown, monsoon season in Bombay was in full swing. So, because of the moisture during the monsoon season and the closure of the units, and the machines which were not running at all had totally caught junk and rust. So machinery was totally gone rotten, and once things opened up, people had to procure new machineries, and it was so difficult because 6 months or 8 months being closed and then no income coming in, and once you open up just to start your own business or to have it a rerun and to invest money was very difficult. And other things as like the fabrics or ready stock which was lying there, because of the moist, had caught in a very foul smell, and which was not saleable at all, and which had to be either donated or given at a dirt cheap rate. लॉकडाउन के बाद जो खुल रहा है, फिलहाल अभी थोड़ा काम काज रोलिंग पे आ रहा है और घर गृहस्थी चलाने में थोड़ा आसान हो रहा है। इसके पहले तो बहुत तकलीफ था, कैसे भी करके हम लोग घर चलाए, जो भी तकलीफ था सहा। लॉकडाउन में बहुत तकलीफ सहा गया, घर से लेके मुंबई तक, यहाँ तक बहुत तकलीफ सहा गया। कब गांव गए थे? गांव लॉकडाउन में गांव नहीं गए थे, लॉकडाउन में पूरा यहीं थे, लॉकडाउन के बाद ही गए थे। लॉकडाउन में इतना रश था जाने में, इसके लिए जाना उचित नहीं समझे। तो अब जाके जब खुला है तो आपको कैसा लग रहा है? सब अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कामकाज भी रोलिंग पे आ रहा है, हम लोग का भी घर अच्छे से चल रहा है। जो कि जो कर्ज लिए के चला रहे थे, कर्ज भी धीरे धीरे हो रहा है वापस, वो अच्छा लग रहा है। तो लॉकडाउन में क्या क्या कठिनाई थी? लॉकडाउन में हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमको काम करते हुए यहाँ पे 1 महीना हुआ। अच्छा, हम कहीं और। हाँ, लॉकडाउन भाई, लॉकडाउन मेरे लिए बहुत मज़ेदार था, एकदम मस्त। क्यों? मेरी लॉकडाउन में शादी हुई, मस्त 6 महीना बीवी के साथ था, खाया पिया मौज मस्ती किया, एकदम। मैं तो कहता हूँ दोबारा लग जाए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी काम धंधे की पोजीशन एकदम ख़राब, और सेठ लोग कोई कारखाना खोलने को राज़ी नहीं। फिर भी हम लोग कैसा भी करके इधर उधर दौड़ के
भाजी बेच के या कुछ कपड़े या कुछ करके कैसा भी बच्चों को जिलाए। फिर धीरे और बढ़ा, धीरे धीरे करके फिर सेठ लोग कारखाना चालू किए, फिर हम लोग काम पे आना स्टार्ट कर दिए। फिर धीरे धीरे सुधार आने लगा, अब लाइन लेवल पे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। And moreover, if you think, I mean, the labor that we have, the stitching labor, or even our salaried staff, as in the masters or the overlock guys or the ironing guys, they were the most affected because they had to run away to their village and they had no income. But we, as on humanitarian grounds, did provide a substantial amount to them, but there was a limit to the kind of amounts that we could give them, and for them income was zero, and I can understand how difficult it was for them to maintain their living and to meet their basic necessities also. देखिए, लॉकडाउन आया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उसे सीखना और टूटना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं भी लॉकडाउन के पहले से मैंने कहा 60-70 हज़ार 80 हज़ार कमाता था एवरी मंथ, लेकिन फिर जब लॉकडाउन लगा तो मुझे 7 मई को गांव भागना पड़ा। कैसे पहुंचा शायद आपको बता नहीं सकता हूं, इसलिए ये बताना चाहूँगा कि लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं आ रहा, तो भी गांव पहुंचा। 3 दिन 14 घंटे में मैं गांव पहुंचा, लेकिन गांव गया, फिर गांव में ऐसा दिन आ गए कि मुझे गटर साफ़ करनी पड़ी, चाय की दुकान डालनी पड़ी, हमाली करनी पड़ी, सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज फिर वापस मुंबई में हूँ और फिर एक से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, और सबके लिए मेरा यही कहना है कि कोई आदमी हार मत मानो। जब तक शरीर में जान है, मर्द का काम है काम करना, काम करते रहो।